Hello students. The previous class में देखते हुए different terms related to the communication system, the source, the signal, the information, message, transducer, and finally हमें देखते हैं कौन repeaters. है The repeaters, that is a single unit in which both the transmission and receiver, transmitter and receiver, both are acting at a single place. That is the repeaters. So in the ground the repeaters are used the towers, and in space the repeaters are the satellites. The another important term that is called to bandwidth. For bandwidth कहले में कौन बुझेगा? What do you mean by bandwidth? So bandwidth कहले this is the difference between the f max and f min, the maximum frequency and minimum frequency. The bandwidth this is the difference between the maximum frequency and minimum frequency of the signal. तो जो सिग्नल टाइमर पास करो छे थ्रू द मीडियम देके ट्रांसमीटर रिसीवर पर्यंत जाऊ छे द सिग्नल रे द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम मैक्स टू मैक्सिमम मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टू मिनिमम इज नोन एज द बैंडविड्थ. फॉर एन एग्जांपल हमें जो मैसेज बा इन सिग्नल हमें पठो छे तो से सिग्नल कोन होई पारे वीडियो होई पारे ऑडियो होई पारे अलरेडी तो फॉर different signals have different frequency. For an example माने करा speech, the speech signal the speech signal frequency varies from that is equal to 300 hertz to that is called 3100 hertz. This is the frequency variation. This is the f min and this is your f max. So it is speech frequency variation 300 hertz to 3100 hertz. So in this case, so what is the bandwidth? तो लगता है मैं काउंट कर पाएगा bandwidth कहते हैं ना that is called the 31 minus of 300. That is the maximum to minimum difference. तो अर्थात that is called to 2800 hertz. So this is the signal frequency for speech. Therefore, we use the frequency of 2800 hertz in case of a mobile, because in case of a mobile we convert the speech or transfer the speech. So similarly, हमें देखिए audible frequency audio. तो audio frequency la visible audio like that. That's called 20 hertz to that's called 2000 hertz. 2000 20 kilohertz 20 kilohertz 20 hertz to 20 kilohertz. This is the frequency of the range of frequency la audible. तेरो आर bandwidth केते जीवो तले bandwidth is equal to maximum to minimum. Maximum केते अछि 200 kilohertz 200 kilohertz minus of minimum केते 20 hertz. तो जेहेतु 20 hertz is very small as compared to 20 kilohertz, this therefore the bandwidth is nearly equal to that is 20 kilohertz. 20 kilohertz. तो इफे में कौन जाने the different signals has different frequency levels, range of frequency. तो इस range of frequency लेकर में कौन कहला में bandwidth. In case of the TV transmission in India, तो इंडिया रे हमें जो हमें टीवी ट्रांसमिशन होची पर टीवी ट्रांसमिशन हमें करू छे तो टीवी ट्रांसमिशन रे तो कोन होची ना बोथ ऑडियो एंड वीडियो. तो बोथ ऑडियो एंड वीडियो कोन करा ट्रांसमिटेड करा छै. तो ऑडियो पे हमें कोन रखु छे 20 किलोहर्ट्ज एंड वीडियो पे साधारणतः कोन रखा जाए 4.2 मेगाहर्ट्ज 4.2 मेगाहर्ट्ज हला. तो देयरफॉर एटा लगे दे 20 किलोहर्ट्ज. तो साधारणतः हमें टीवी पाई हमारा थोड़ा बैंडविड्थ कहते हैं ना दैट इज इक्वल टू 6 मेगाहर्ट्ज. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. तो फॉर द टीवी ट्रांसमिशन द बैंडविड्थ इज 6 मेगाहर्ट्ज. So let's take types of communication. What are the different types of communication? Types of communication.
types of communication. Clear? Types of communication. What are the different types of communication? So generally, the types of communication, तो हमें आपको केमिति divide करूँ communication को according to the nature of transmission information, mode of transmission and प्रथम वाला nature of transmission, nature of information, दूसरा mode of transmission, then method of transmission, this is the method types of transmission, mode of transmission, तब रहला types of transmission channel, types of transmission channel, ହେଲା गोटला nature of information, तब रहला mode of transmission, और like the transmission channel, and another one is the types of modulation, types of modulation. तो यही अनुसार आमे कौन करछु कम्युनिकेशन को साधारणतः क्लासिफिकेशन करा जाय छै। तो प्रथम देखिबा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन द न्यूज़ दैट टू बी ट्रांसमिटेड, जोटा को हमें ट्रांसमिटेड करू से जो मैसेज हमें दउ छै तार नेचर अनुसार हम देखिबा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनुसार नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अनुसार देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक रहला स्पीच कम्युनिकेशन, हैना as in radio, that means audio जो हमें बोलते हैं the speech communication according to the information ये speech, तले speech communication as in radio, संधि दो रहला that is the picture as well as speech, picture and speech, तो combined together picture and speech communication, है ना हमें कौन पठ होचे both video and audio as in TV, तो हमें कहे टीवी कम्युनिकेशन, है ना कहे हमरा इंफॉर्मेशन अनुसार हमें कम्युनिकेशन को डिवाइड करू से बडला रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग आउट हला तमरा टीवी कम्युनिकेशन, जोटा कि बोथ पिक्चर एंड स्पीच आर कम्युनिकेटेड। देन हला फैसिमल जोटा कि हमें फैक्ट्स, है ना तो फैसिमल ट्रांसमिशन, the decimal transmission जोटा कि हम कहते हैं facts, है अर्थात the original documents can be transmitted to a long distance, है ना तो माने करो ଗୋଟେ ऑफिस रे हमर डॉक्यूमेंट्स कौन कर अछि डिपॉजिट कर अछि तला में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हमें द डेसिमल ट्रांसमिशन फैक्ट्स सर्जर में पट्टी करबा, दिस इज नोन एज द फैक्ट्स। एंड अनदर इज द डाटा प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन एज इन कंप्यूटर, हला तले कंप्यूटर माध्यम रे हमें कोन करि परसे डाटा, हला नी हमें ट्रांसफर करि परसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन अनुसार हमें क्लासिफिकेशन तले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, गोडला ब्रॉडकास्टिंग जोटा कि रेडियो, गोडला टीवी कम्युनिकेशन, गोडला फैक्स और गोडला कंप्यूटर। These are the different types of communication according to the nature of the information by message. The second type देखिबा that is the according to the mode of transmission, है ना अर्थात तक हम कौन कहबा सिग्नल according to the signal, according to
mode of transmission বা signal transmission ହେଲା according to mode of transmission so the signal transmission signal ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା analog transmission ଆଉ ହେଲା digital transmission clear ଗୋଟେ ହେଲା analog transmission ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା digital transmission radio tv ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା analog ଆଉ ତମର computers network ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ହେଉଛି digital transmission so next is like according to the method of transmission channel according to the method of transmission channel according to the method of transmission channel का कहला the medium that connects the transmitter to receiver method according to the method of transmission channel तो प्रथम दला line communication एक रहला line communication हला तले कि कहां से जब कराउछि that is the transmitting भाईला channel तो मेथड ऑफ चैनल हला लाइन ट्रांसमिशन हला लाइन साहाଯ୍य अर्थात वायर साहाଯ୍य रे हमें वायर साहाଯ୍य रे जदि हमें ट्रांसमिशन करिबा अर्थात द message that to be transmitted from transmitter to receiver by using कहा that is the wire तले वायर साहाଯ୍य रे हमें ट्रांसमिशन करिबा अर्थात चैनल जदि वायर हेतिबो तो कहला लाइन ट्रांसमिशन ए लाइन ट्रांसमिशन भीतर की आसीबो केबल कोएक्सियल केबल हला तो जो केबल सो जानि थियो हला अराउंड एंगल जोटा पछरे ओटे थिन वायर होछि एडाला कोएक्सियल कॉमन एक्सिस हला कोएक्सियल केबल समझे टू वायर हला टू वायर लाइन कम्युनिकेशन अर्थात दुईटा तार थियो तले एठोडे तार योडे तार टू वायर लाइन कम्युनिकेशन ओडेला कोएक्सियल कम्युनिकेशन common axis hela out like two wire line communication similarly that is optical fiber some cases we use also optical fiber hela we also use the optical fibers for the communication system so these are the known as the line communication hame kahe method of transmission channel the transmission channel रो मेथड अनुसार को मेथड रे हमें पठौछे से अनुसार गोटेला लाइन कम्युनिकेशन अर्थात जोटे की तार माध्यम रे हैला एटा कोएक्सियल वायर हे पारे टू वायर हे पारे किंबा गोटे ऑप्टिकल फाइबर हे पारे तले सेकंड देखिबा द सेकंड हला दैट इज द स्पेस कम्युनिकेशन जोटे की विदाउट वायर एटाला लाइन कम्युनिकेशन जोटे की तार माध्यम रे हमें व्यवहार करूछे out hela that is the space communication jodi jode kocha hame without wire communication ba koche wireless communication space communication kari pariba ba koche wireless communication hala tale ethi hame kon korche we use wires for the communication line communication out hela wireless communication jothre no wire is used for the communication hala देखि जब बड़े बड़े हमें तर माइक्रोफोन आगे कथा खोजे ये पे हमें जो माइक्रोफोन यूज करछे ताको जे कॉर्डलेस माइक्रोफोन अर्थात नो वायर आगु कोन थिला एटु वायर ता लागुतला पछरे तार ओडे लागुतला कोएक्सियल केबल तार ओडे लागुतला किंतु एपे जो माइक्रोफोन আছে से माइक्रोफोन लाउ तार लागुनी एटा कहछे कॉर्डलेस वायरलेस कम्युनिकेशन तले वायरलेस कम्युनिकेशन तो हमें कोन प्रकार व्यक्त कराई छी तले अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी तो हमें जो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल रो फ्रीक्वेंसी अनुसार आपको हमें तीन प्रकार कम्युनिकेशन करू छे गोटेला ग्राउंड वेव जोटे कि हमें परे पढिबा ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन सेकंड स्काई वेव कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन हला दैट इज द स्पेस वेव कम्युनिकेशन हला स्पेस वेव तला अर्थात एथे हमें कोन देखिले तले अकॉर्डिंग टू द मीडियम तल मीडियम अनुसार हमें टी व्यवहार करले गोटेला वायर लिंक आउट हला वायरलेस गोटेला वायर लिंक आउट हला वायरलेस कम्युनिकेशन वायर लिंक रे हमें देखले विभिन्न प्रकार वायर व्यवहार करै छै फॉर द कम्युनिकेशन
এবং ଆଉ ହେଲା ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন जोते कि हमें कोन व्यवहार करू छै एठी हमें कहां सर्जर करू छै ना रेडियो वेव्स एठी हमें कहां सर्जर करू छै ना रेडियो वेव्स हला the radio waves are transmitted from transmitter to receiver that helps to carry the signal from transmitter to receiver जेम हमें तारा रे पठौतले सिग्नल एठी हमें तारा रे न पठेकी कोन करसे रेडियो वेव्स साहाय्य हमें कोन करसे सिग्नल को पठौछे एवं सही रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी अनुसार आमे ताको तीन प्रकार पठै परिबा गोडला ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन गोडला स्काई वेव कम्युनिकेशन और गोडला तोरा स्पेस वेव कम्युनिकेशन तो ये थिला तमरा तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन चैनल अनुसार तो नेक्स्ट असला अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेशन अनुसार तो मॉड्यूलेशन अनुसार वर्तमान देखिबा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन कहले हमें कोन बुझिबा चेंज हला तो ये मॉड्यूलेशन कोन हमें परे पड़िबा केवल खाली मॉड्यूलेशन अनुसार कोन केमिति ट्रांसमिशन होचे हम खाली देखिबा टाइप से गोडा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जोडा परे हमें पड़िबा डिटेल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और देला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और देला फेज मॉड्यूलेशन हला तो these are the three different types of modulation by change हला नी तो in which the transmission takes place तो एई भली भाबरे हमें ट्रांसमिशन को क्लासिफिकेशन करि छै क्लियर तो प्रथम कहली नेचर ऑफ द मॉड्यूलेशन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेचर ऑफ द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनुसार तापरे हमें कहले सिग्नल अनुसार तापरे ला तमरा मोड ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन अनुसार एंड लास्ट थिला मॉड्यूलेशन अनुसार ए चारि प्रकार रे हमें कम्युनिकेशन को क्लासिफिकेशन कर सकते तो नेक्स्ट तो हमर मोस्ट इंपोर्टेंट हला जते बेले हमें डी कोन करू छै वायरलेस कम्युनिकेशन रे अबे सब जहां कम्युनिकेशन करू छै बे सब वायरलेस कम्युनिकेशन तो वायरलेस कम्युनिकेशन ले कोन हुए तर जो मेसेज टा को हमें कोन करू छै पठिया को चाहू छै प्रथम हमें कोन कले ताको सिग्नल ले कन्वर्ट करा गेला एवं दैट सिग्नल ट्रांसमीटर साहाय्य रे ताको एम्प्लीफाइड करके कोन करा गेला एंटीना साहाय्य रे ऊपर को स्पेस को छाड़ दिया गेला हला एटा ला तोरा ट्रांसमीटर सेक्शन तो जोठी मेसेज क्रिएट करिकी ताको ट्रांस कोन करा गेला एम्पलीट्यूड सा तोरा बढ़े की कोन करा गेला एठी ऊपर को चढ़ाला जोटा कहसे मॉड्यूलेटेड वेव तले एटा एंटीना साहाय्य छाडला परे तो मझिरेटी मीडियम के रहला दैट इज द एटमॉस्फेयर एटी मीडियम रहला के एटमॉस्फेयर तो आसी कोठी पहुंचला एटी तमर एंटीना पाखरे पहुंचला जोटा कि रिसीवर एंटीना तो एठी जोटा नेला एटाला रिसीविंग सिग्नल तो रिसीविंग सिग्नल एटी कि रिसीवर सेट ताको कन्वर्ट करके कोठी देला यूजर्स को तले वर्तमान ए जो गैप तले एटाला ट्रांसमीटर एंटीना एटाला रिसीवर एंटीना तो ए ट्रांसमीटर एंटीना रो रिसीवर एंटीना को केमिति सिग्नल जाउছে सेटा देखिबा ताको कहा जाय दैट इज द प्रोपगेशन थ्रू द एटमॉस्फेयर रे प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर रे केमिति तमरा वेव्स टा रेडियो वेव्स टा ट्रांसमिट गोटे जगह रो अन्य जगह को जाउছে तो बिफोर डिस्कसिंग this है that is the propagation through the atmosphere so first of all we know something about the atmosphere the atmosphere टा की तो प्रथम देखिबा एटमॉस्फेयर पहले हमें कोन बुझिबा एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर होसी an air envelope around the surface of earth चारि पटे एटा जोडे अर्थ हला दिस इज योर अर्थ तर अर्थ चारि पटे कोन रहै छी गोटे एयर रहै छी वायुमंडल जोडे कहै छी हमें वायुमंडल एटा एटमॉस्फेयर हला an air envelope हला नी तो अर्थ चारि पटे गोटे एयर रहै छी एवं से एयर को हमें कोन कहै छै एटमॉस्फेयर इट इज एयर envelope हला इट इज an air envelope that surrounds the earth surface तो earth surface चारि पटे जो एयर रो घेरी की रहला तो से सरफेस टा को हमें कोन कहले एटमॉस्फेयर बोली कहै छै एंड दिस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स हला तो एटमॉस्फेयर को हमें कोन करै छी डिफरेंट लेयर्स दीस आर द डिफरेंट लेयर्स हला एंड देयर इज नो एनी हला लेयर ऑफ शार्प बाउंड्री हला तो एठी कोन करै छी तमर विभिन्न प्रकार लेयर्स हमें क्लासिफिकेशन कराय छी किंतु देयर इज नो शार्प बाउंड्री हला
तो साधारणतः ये जो लेयर्स का मैं क्लासिफिकेशन करिसे कौन सब से लेयर्स हैला तो एटमॉस्फेयर रे कौन सब लेयर्स रहला उडला ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर ionosphere and last one is the exosphere है ना these are the different layers of atmosphere है ना तो अर्थ चारिपटे जो वायुमंडल घेरे छै जकरा कहै छै एटमॉस्फेयर the air envelops surrounding the surface of earth that air है तो the total air thickness का मैं डिवाइड करि से उडला ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर ionosphere and exosphere है these are the different layers of the kahara atmosphere है आपका स्फीयर का स्फीयर कारण जेहेतु अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप तो तार चारिपटे जे रहेला से कोन रहेला दैट इज आल्सो स्फीयर तो से पे लिखला इट इज अ स्फीयर इट इज अ स्फीयर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर ionosphere exosphere all are the spherical in shape है जेहेतु अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप तो तार चारिपटे जो एनवलप्ड रहेला दैट इज आल्सो इन स्फेरिकल इन शेप तो प्रथम देखिबा ट्रोपोस्फियर कोन है द ट्रोपोस्फियर जदि हमें देखिबा तो अर्थ एटमॉस्फेयर the first layer of atmosphere from the surface of earth so this is the surface of earth the diameter of earth surface will know earth surface so this is the section of the earth atmosphere so let me divide into atmosphere into different section hala the first section hala this is your troposphere hala edala surface ta charipate jo dagela तो कहला ट्रोपोस्फियर तो दिस इज योर ट्रोपोस्फियर हैला तले आठ चारिपटे जो फर्स्ट लेयर फर्स्ट स्फीयर से जो रहला सेटा कहला ट्रोपोस्फियर एंड ए ट्रोपोस्फियर रे कोन अछि बता देखबा ट्रोपोस्फियर साधारणतः 0 रु केते 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर रहला 0 रु 12 किलोमीटर इन हाइट हैला तो 0 to 12 kilometer of in above the height from the surface of earth eta hela ki tomara troposphere hela this sphere is this spherical region but the sphere extends up to 12 kilometer of height all the water vapors are contained in this sphere jete tom so water vapors rahila cloud fog humid hela to jete so water vapors hela water contains तो सब कहा भीतर रहला ए ट्रोपोस्फियर भीतर रहला देयरफॉर द क्लाइमेटिक चेंज टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर तो ट्रोपोस्फियर भीतर तमर जते प्रकार जो क्लाइमेटिक चेंज हला जो वर्षा जो हम ऊपर देखु छे एटा अप टू विद इन द 12 किलोमीटर भीतर हला तले दिस इज हला ऑल द वाटर कंटेंट टेक्स आर इन द ट्रोपोस्फियर then the density varies the density हला the air density the density varies from 1 kg per meter cube to 10 to the power minus 1 so 10 to the power minus 1 kg per meter cube hela the density of air in a troposphere varies from kete gela 10 to the power 10 to 1 kg per meter cube to 10 to the power minus kg per meter cube then if how कोन हो ना जते ऊपर जिबा जते ऊपर जिबा सते कोन हो 6 केल्विन डिक्रीजेस पर किलोमीटर हैला तले 6 केल्विन डिक्रीजेस पर किलोमीटर तब प्रति किलोमीटर रे कोन हो 6 केल्विन टेंपरेचर धीरे धीरे कमी जिवो हैला एटा ल तमरा ट्रोपोस्फियर तले ट्रोपोस्फियर प्रथम कहली आर थिकनेस के तरेला 0 to 12 किलोमीटर all the water contains in this troposphere region अर्थात there is a climatic change takes place in this tropospheric region the density changes from 1 kg meter cube to 10 to the power minus 1 kg per meter cube and the temperature falls down but decreases already 6 kelvin per kilometer clear next and there is a short gap there is a small gap between this is the troposphere and next
स्फीयर नेक्स्ट स्फीयर के रहला स्ट्रेटोस्फीयर द ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर मझिरे गुटे देयर इज ए स्मॉल गैप एंड द गैप इज नोन एज द ट्रोपोपॉज पॉज मींस स्टॉप तने ट्रोपोपॉज P A U S E ହେଲା तर ट्रोपोस्फीयर आउ द नेक्स्ट लेयर मझिरे गुटे स्मॉल गैप इज देयर ताकू कहै ट्रोपोपॉज तो नेक्स्ट आसला के स्ट्रेटोस्फीयर नेक्स्ट हला स्ट्रेटोस्फीयर देन नेक्स्ट लेयर हला स्ट्रेटोस्फीयर अब स्ट्रेटोस्फीयर and its height thickness varies from 10-12 km to 50 km ହେଲା तले आर थिकनेस लागते हाइट लागते 12 km रु 50 km पर्यंत एक्सटेंड होला and the region is the clear sky जेहेतु वाटर कंटेंट्स रहला एठी तो एटा कोन रहला तमरो क्लियर स्काई इज इन द कोठी ट्रोपोस्फियर रीजन हला तले एठी तमरो क्लियर स्काई हला द स्काई इन द ट्रोपोस्फेरिक रीजन तो और कोन रहला आर डेंसिटी वेरीज फ्रॉम एटा कतेला 10 to the -1 then एटा 10 to the power -1 kg per meter cube to हमें जे 10 to the power -3 kg per meter cube हला त जते ऊपर ऊपर को जिबा सते एयर रो डेंसिटी कमी कमी जिवो त एटा 10 to the power 1 kg per meter cube रो 10 to the power -1 kg per meter cube ट्रोपोस्फियर आसी गला 10 to the power -1 रो 10 to the power -3 kg per meter cube हला तो दिस इज योर ट्रोपोस्फेरिक रीजन हला तो नेक्स्ट द टेंपरेचर वेरीज फ्रॉम 220 to 180 Kelvin हला तो इन दिस रीजन टेंपरेचर वेरीज फ्रॉम 220 Kelvin टू 180 Kelvin धीरे धीरे जते ऊपर ऊपर जिबा हमर साथे कोन होचे टेंपरेचर कम कमी जाउछे तो नेक्स्ट देयर इज ए इंपोर्टेंट हला लेयर इन कोठी दैट इज द अपर एक्सट्रीम ऑफ द कहरा स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर रो अपर एक्सट्रीम रे गोटे थिन लेयर होइछे जोटे कहछि ओजोन लेयर हला तो देयर इज ए ओजोन लेयर एट द अपर एक्सट्रीम of the stratosphere ozone layer and the ozone layer the most the function by omega con right absorbs all the cosmic by ultraviolet rays of the sun which is harmful for the human being हैला तो जदि रीजन एटा नथांता ताहाले हमर एठी जो आमे जो रहउछे हमर सब बॉडी सब कोन दसो सब बन पड़ी जाता सब कारण तले कोन दोछि यार मौजी कोन जो सूर्य मध्य आसुस जो हमारा कॉस्मिक रे अलरेडी the ultraviolet ray so these are absorbed by the कोडा ओजोन लेयर हैला तो नेक्स्ट तापर आसला कोन तो नेक्स्ट आसियो के मेसोस्फियर तो मेसोस्फियर और ओजोन लेयर मझरे एठुडे गैप अछि एवं जाम कहै स्ट्रेटोपॉज एडल स्ट्रेटोपॉज हैला there is a small gap between stratosphere and the next mesosphere there is a small gap and this gap is known as the stratopause हैला तो नेक्स्ट असला मेसोस्फियर the mesosphere the next layer of the atmosphere that is known as the mesosphere it has the mesosphere तो मेसोस्फियर का काम को मेसोस्फियर यस एटा जा कला केते 50 km then 50 to 80 km मेसोस्फियर हला 50 to 80 km in height हैला तो 50 रु 80% तो रहला तोरा जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रहला सेडला मेसोस्फियर हैला तो मेसोस्फियर रहला कोन तारा डेंसिटी केतेला 10 to the power -3 एडला 10 to the power -3 रु 10 to the power kg per meter cube तो मेसोस्फियर कोन हे गेला तोरा डेंसिटी वेरी जायला केते 10 to the power केते गेला डी -3 हैला तो 10 to the power -3 रू केते आसला 10 to the power -5 गला and the temperature in this region increases again तो एठी बतन देखो एठु कोन होतला ऊपर का में जते पर जाउतले सेते कोन होतला टेंपरेचर कमी जाउतला हला नी तो 6 केल्विन टेंपरेचर कम होतला पर किलोमीटर रे किंतु जतरा में मेसोस्फियर को एटा क्रॉस करते पुनी एठी कोन हेला टेंपरेचर राइज कला काई टेंपरेचर राइज कला तो एपort तो टेंपरेचर हम ऊपर गले कम होतला पुनी एठी बतन देखले टेंपरेचर पुनी बढ़ी गला काई टेंपरेचर बढ़ीला बिकॉज़ तो एपort कोन हेला दिस लेयर कम्स क्लोजर टू द सन हला तले एपort कोन रहले सूर्य तो सूर्य में हम ये आसुछि तले एपटे कोन हो तले आइनोस्फियर टेंपरेचर अधिका तापर धीरे धीरे टेंपरेचर कोन हो बढ़ी आसे
हला तो एठे में कोन देखले तो मेसोस्फियर रे टेंपरेचर कोन हे जिवो दैट इज इंक्रीजेस 180 टू 700 केल्विन एठी वर्तमान कते दिला 180 केल्विन तले एटा हे जिवो 180 केल्विन रु 700 केल्विन बढ़ी जिवो काहे ना दिस लेयर इज कम्स टुवर्ड्स द सन सूर्य को ठारो निकटतम थिबारु तले ए जगह रे कोन हे जिवो तमरा हला तले ए जगह रे तमरा कोन हे जिवो टेंपरेचर बढ़ी जिवो हला तो प्रथमे टेंपरेचर एठी 800 फीट ऊपर में जाते टेंपरेचर कमी जाउतला किंतु तळे स्ट्रेटोस्फियर में ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर पर्यंत कमुतला एवं तळे स्ट्रेटोस्फियर रो विषय की गले से तळे जेहेतु इट इज क्लोजर टू द सरफेस सन तळे सेपटु कोन हो टेंपरेचर अधिक पाइबो काठू तो सूर्य गठारू तो एपटू तले केतेला धीरे धीरे टेंपरेचर बढ़िबो बढ़ी के केते जीवो 180 किलोमीटर रु सॉरी 180 केल्विन रु 700 केल्विन पर्यंत बढ़िला नेक्स्ट तापर आसला के आइनोस्फियर द आइनोस्फियर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन तो आइनोस्फियर बतन कोडा तो दिस इज योर नेक्स्ट आसला तो आइनोस्फियर नेक्स्ट आला आइनोस्फियर तो दिस इज योर आइनोस्फियर तो एटा लागे तो मेसोस्फियर भीतर जोड़ा रहला आ कहला आइनोस्फियर कोन बुझिबे तो एटा ला तोरा आइनोस्फियर तो आइनोस्फियर केते बाट रहला तो एटा बतन के 80 then 80 रु 400 रहला के आइनोस्फियर 80 किलोमीटर रु 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर्यंत रहला के आइनोस्फियर हला तले आइनोस्फियर रहला 80 रु 400 एवं आपको हमें काहे के आइनोस्फियर बोली कहउची व्हाई इट इज कॉल्ड आइनोस्फियर बिकॉज़ in this region रे समस्त what कोडा air molecules are converted into ions हैला तले ए जो लेयर रे आइनोस्फियर एक कोन हुए एठी सबुडा को कोन थिला air molecules but in this region ionosphere रे air molecules कोन हो are converted to ions because it gets sufficient energy from the sun हैला सूर्य का ठार अधिक एनर्जी पाउची तले एटा सूर्य का एटा फर्स्ट एटा लास्ट तो एपुट एटा लास्ट तो आइनोस्फियर जेतु फास्ट रहउची तो ये जेतु मैक्सिमम एनर्जी गेन करछि सूर्य कटारो तो एठी कोन वे ऑल द व्हाट गुड एयर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस है ना तो सेठी पे आपको कहा जाए आइनोस्फियर ऑल द व्हाट एयर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस आयंस मींस व्हाट एटा वाले मॉलिक्यूल्स राइट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जेता फ्री इलेक्ट्रॉन टा बाहर गला देन दिस एटम इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड तर एटा पॉजिटिव चार्ज एटा ला नेगेटिव चार्ज अर्थात ये गुटे पॉजिटिव आयन एटा ला नेगेटिव आयन्स अर्थात हियर तर इन आइनोस्फियर तर एटी कोन रहला मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तर एटी कोन रहला सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फ्री इलेक्ट्रॉन एटी सब मॉलिक्यूल्स बट आइनोस्फियर रे कोन रहला तमरा आयन्स एवं कोन रहला सब एटी सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुडी को सृष्टि हैला तले फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अनुसार हैलाडी तले एठी बर्तन देखा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रथम देखा इलेक्ट्रॉन काई सृष्टि हैला ना ड्यू टू द हाई थर्मल एनर्जी तले हाई थर्मल एनर्जी जदी एटा हैला एटु केते एटा हैला 80 रु कोन केलेला 400% तले बर्तन जेते सूर्य मेठरा रश्मि आसुची तले को लेयर आगे एनर्जी रिसीव करूची एटा तले एठी तापर धीरे धीरे एनर्जी कम समय जाउची त जेते इलेक्ट्रॉन्स था जेते आयन्स भांगिबो त कोठी अधिक भांगिबो ऊपर जद ऊपर अधिक एनर्जी अछि त माने इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी अनुसार जदी देखिबा त ऊपर तमर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक आबो धीरे धीरे तळको कमी आसीबो हलाडी बट इन दिस रीजन ए रीजन रे समस्त मॉलिक्यूल्स आर इन पूरा टोटलिटी कोन हैला आयन्स तमर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहला किंतु ए जो फ्री इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी तले फ्री इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी जते ऊपर को जिबा सेते तमर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी जिबो ए इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी अनुसार हलाडी तले अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन दिस आइनोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स पुणे आपको हमें 3 भाग व्यक्त कर दिया गया काहे को आइनोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स तले अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी अनुसार कौन करेला को 3 बार व्यक्त करेला कोडेला डी लेयर आउटला ई लेयर एटाला ई लेयर आउटला एफ लेयर हला क्लियर त आइनोस्फियर को हमें 3 बार व्यक्त करले कोडेला डी लेयर कोडेला ई लेयर आउटला के एफ लेयर हला कहां अनुसार
द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अनुसार जते ऊपर ऊपर जीवा सेते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी बड़ी जीवो वक्तन डी लेयर रे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ताटू ई रे टिके अधिक एफ रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हला तो इलेक्ट्रॉन ला डेंसिटी अनुसार आयनोस्फीयर को कॉल करा गेला तिनी भारे व्यक्त कराला डी लेयर तक जाय थर्मोस्फीयर हला तो डी लेयर तक जाय थर्मोस्फीयर then E layer को कहा जाए that is the heavy canally heavy side layer and F layer को कहा जाए apleton layer এবং এটা না canally heavy side layer তাহলে বর্তমান তিনটা লেয়ার সৃষ্টি হলা কোঠি আয়নোস্ফিয়ারে তাহলে ডি লেয়ার যেটা কি থার্মোস্ফিয়ার 80 রু কেতটা গলা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 80 রু সরি 80 रु 150 তাহলে 80 रु 150 गला के रहला तमरे डी लेयर थर्मोस्फीयर जोटा कहला दैट इज द 80 किलोमीटर रु 150 किलोमीटर तापर ई लेयर जब का जे कैनेली हेवी साइड लेयर सेडाला 150 रु 300 एडाला 150 रु 300 up to 300 अब कहला कैनेली हेवी साइड लेयर देन तापर 300 रु 400 एडा कॉल करा तमरा एप्लेटन लेयर बा एफ लेयर and eta ka answer hela electron density अनुसार है and the f layer again divided into two parts and f layer को पुणी दिया व्यक्त कराय से बडला f1 और दला f2 and eta केते बेला संभव in daytime the जेहेतु in daytime the sun energy is maximum तो सेते बेले कोन बे daytime रे कोन बे थी तो f layer again divides into two layers that is called f1 and f2 but in night time है तो this is only F layer right these two layers are merged to form a single layer that is called to F layer right so this is your ionosphere already so which is the most important for the communication system जोटा कि ionosphere कौन काम है अबे पढ़ेगा से जाने तो नेक्स्ट आसला कि एक्सोस्फीयर तापर आसला एक्सोस्फीयर the exosphere it is the outer layer of the outer part of the core exo means out the outside of the star ionosphere atmosphere अब कहला exosphere है ना the exosphere is the outside of the core atmosphere it only है ना it this thickness और thickness है कहते 10,000 किलोमीटर है ना this exosphere of thickness है that is the 10,000 kilometer and it is साधारण like convey free space है ना it is free space अर्थात in this region only the lighter molecules the lighter जोटा कि तोरा hydrogen बा most of the elements है ना क्या hydrogen or helium are there है ना and the gap between the molecules are very large so it is साधारणतः कहा जाए three layers जोटा कि exosphere है ना तो this is all about your atmosphere of the earth the next class में देखिवा how the radio waves propagated through the atmosphere from transmitter to receiver है that is the next class में देखिवा that is the propagation of the radio waves from transmitter to receiver